کہ تحریک انصاف کی پنجاب میں سیاسی گرفت مضبوط، وزارت اعلیٰ کے بعد اسپیکرشپ بھی حاصل کر لی۔ پی ٹی آئی اور کافلی کے مشترکہ امیدوار سبطین خان 185 ووٹ لے کر اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب کر لیے گئے۔ نون لیگ کے سیف الملوک کھوکھر کو شکست 175 ووٹ حاصل کر سکے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوا۔ گنتی کے بعد 4 ووٹ مسترد ہوئے۔ نون لیگ کے بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر سے متعلق تحفظات۔ میاں عبدالرؤف نے پینل آف چیئرمین کو درخواست دے دی۔ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر سے متعلق تحفظات میاں عبدالرؤف نے پینل آف چیئرمین کو درخواست دے دی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں علی اکبر سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں اگر اقتدار کی منتقلی کے سلسلے کی بات کریں تو اقتدار کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ قائد ایوان کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ چھوٹی پرویز لیگ قائد ایوان منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ اب جو ان کے وزیر اعلیٰ بننے کی وجہ سے اسپیکر کا عہدہ خالی ہوا تھا، اس کا انتخاب بھی ہو چکا۔ تحریک انصاف مسلم وکاس کے مشترکہ امیدوار سردار سبطین خان جو ہیں وہ 185 ووٹ حاصل کر کے اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی وجہ سے ان کے مد مقابل اپوزیشن اتحاد کے سیف الملوک کھوکھر 175 ووٹ حاصل کر سکے ہیں اور 4 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ کل جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 364 بتائے گئے ہیں۔ اس طرح اگر ہم بات کریں تو دوران پولنگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ بیلٹ پیپر کے اوپر جو ہے وہ سیریل نمبر درج ہے، جس کی وجہ سے خفیہ رائے شماری جو ہے اس کو شفاف بنانا ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ طور پر اپوزیشن کی جانب سے پینل آف چیئرمین کو درخواست دی گئی اور ان سے یہ درخواست کی پولنگ کے عمل کو روکا جائے، لیکن پولنگ کے عمل نہیں رکا۔ اپوزیشن کی جو اعتراضات تھے اس کو مسترد کر دیا گیا اور پولنگ کے عمل پر جاری ووٹنگ کروائی گئی۔ ووٹنگ کے بعد جو ہے وہ گنتی اور گنتی کے نتائج کے مطابق 185 ووٹ حاصل کر کے سبطین خان جو ہیں وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے۔ ٹھیک ہے علی اکبر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ عمر اسلم، یہ بتائیے گا کہ کس بنا کے اوپر 4 ووٹ مسترد کیے گئے اور یہ معلوم ہو سکا کہ کن اراکین کے یہ ووٹ تھے؟ جی بالکل، آج جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مقابلہ ہونے میں انتخاب ہوا اس حوالے سے 175 ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک کھوکھر کو کاسٹ ہوئے، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کو 185 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے۔ 4 ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوئے، جن میں سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے مسلم لیگ نون میں بڑا واضح انسان ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم ووٹوں کے حوالے سے بھی بات کریں تو انہوں نے ان ووٹوں کی کینسل ہونے کی مذمت بھی کی ہے۔ ان کا یہاں پر کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف نے دھاندلی کے تحت جو ہے وہ سیریل نمبر جو ہے وہ بیلٹ پیپر سے لگائے، جو کہ خفیہ رائے شماری میں جو ہے وہ۔ ٹھیک ہے عمر اسلم، علی اکبر، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ملک کے کسی حصے سے بھی محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم الحرام 31 جولائی بروز اتوار، جبکہ یوم عاشور 9 اگست بروز منگل ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ لاہور میں محکمہ اوقاف کے تحت اجلاس ہوا، محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی شریک تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملک کے کسی حصے سے محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم الحرام میں 31 جولائی بروز اتوار، یوم عاشور 9 اگست بروز منگل ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ لاہور میں محکمہ اوقاف کے تحت اجلاس ہوا، محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی شریک تھے۔ مونسون نے رنگ جما دیے، شہر میں وقفے سے بارش۔ فیروزپور روڈ، مال روڈ، جیل روڈ، ماڈل ٹاؤن اور گلشن راوی کے علاقے بھیگ گئے۔ لکشمی چوک، دھرم پورہ، مغل پورہ سمیت دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع۔ لبرٹی مارکیٹ، قذافی اسٹیڈیم، نشتر پارک کے اطراف سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ ٹریفک کی روانی متاثر، کئی گاڑیاں بند ہو گئیں۔ واسا کا عملہ بھی نکاسی آب کے لیے متحرک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کا بڑا وار۔ میو ہسپتال میں زیر علاج بخار کا مریض دم توڑ گیا۔ شام کو حالت بگڑنے پر ہسپتال لایا گیا۔ موت کے اگلے روز رپورٹس میں ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی۔ شہر میں ڈینگی کے مزید 3 نئے مریض رپورٹ۔ 1700 سے زائد مقامات سے لاروا بھی برآمد کیا گیا۔
हालिया बारिशों की वजह से डेंगू वायरस संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। म्यू अस्पताल में डेंगू बुखार का एक मरीज दम तोड़ गया। शान नामी मरीज को हालत बिगड़ने पर म्यू अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन वो जामबड़ ना हो सका और मौत के अगले रोज क्लिनिकल रिपोर्ट्स में शान के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के मजीद 3 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और शहर में 1719 नए मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी, डॉलर मजीद 57 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये 37 पैसे पर ट्रेड हुआ। उधर सोना आज भी 2700 रुपये महंगा, 1 तोला सोना 1,65,000 का हो गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी का सिलसिला न रुक सका। डॉलर मजीद 57 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 37 पैसे पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 244 रुपए से बढ़कर 248 रुपए पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 7 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 252 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। इसी तरह बरतानवी पाउंड 5 रुपए महंगा होकर पहली बार 300 रुपए का हो गया। इमाराती दरहम 1 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 67 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 80 पैसे महंगा होकर 65 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों की मैराथन रेस जारी है। जुमे के रोज सोने की कीमतों में मजीद 2700 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,65,000 रुपए पर पहुंच गई। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोना 1,51,250 रुपए में फरोख्त हुआ और 21 कैरात फी तोला सोना 1,44,375 रुपए में फरोख्त किया गया। माफिया बेलगाम फिर बढ़ा दिए एलपीजी के दाम। 48 घंटों के दौरान कीमत में तीसरी बार इजाफा हुआ। एलपीजी मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपये महंगा हो गया। सिर्फ 3 रोज में एलपीजी 30 रुपये किलो महंगी हो चुकी। एलपीजी ने शहर लाहौर समेत मुल्क भर में अवाम को दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला बरकरार रखा हुआ है और 48 घंटों में तीसरी मरतबा एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में एलपीजी की कीमत 240 से बढ़कर 250 रुपए कर दी गई। 10 रुपए इजाफे से घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए मजीद महंगा हो गया। अब सार्फिन को घरेलू सिलेंडर 2,950, कमर्शियल सिलेंडर 11,350 रुपए में दस्तयाब होगा। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा है कि एलपीजी मार्केटिंग दोनों हाथों से अवाम की जेबें खाली कर रही है, मगर ओगरा खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा सार्फिन के लिए वबाले जान बन गया। आइंदा माह घरेलू सार्फिन की बिलिंग के लिए फी यूनिट कीमत 41 रुपये तक पहुँच जाएगी। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से कम बिजली की कीमत 27 रुपए 42 पैसे फी यूनिट हो गई है, जिसकी बुनियाद पर जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से अगस्त की बिलिंग में रिकॉर्ड इजाफा होगा। सराय ने बताया कि 300 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से 27.22 रुपए फी यूनिट चार्ज होंगे, जबकि 300 से 700 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से 34 रुपए 71 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। इसी तरह 700 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों से 37 रुपए 81 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे। दूसरी जानिब बिजली के बिलों पर 70% जर्नल सेल्स टैक्स भी वसूल किया जाएगा। जीएसटी के साथ साथ दीगर टैक्सेस भी बिलों की सूरत में वसूल किए जाएंगे, जिससे सारिफीन को भारी भरकम बिल भिजवाए जाएंगे। करेंसी की मैराथन में डॉलर नित नए रिकॉर्ड बनाने लगे। रोजाना की बुनियाद पर महंगे होने वाले डॉलर ने अमरा तबके की गाड़ियों को भी ना छोड़ा। टोयोटा कंपनी ने लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 तक का इजाफा। डॉलर की तेजी से बढ़ती हुई कदर ने कोई प्रोडक्ट शहरियों की पहुंच में नहीं रहने दी। टोयोटा कंपनी ने 1300 से 2800 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31 लाख तक का इजाफा कर दिया। 1300 सीसी से 1500 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 9,10,000 का इजाफा किया गया, जबकि 1600 सीसी से 1800 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 9,90,000 से लेकर 12,90,000 इजाफा किया गया है। गाड़ियों का कारोबार तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। लाहौर की मार्केटों में इस वक्त हू का आलम है। हम जिनसे कल हम गाड़ी का सौदा करके 60 लाख में सौदा किया था, आज उनसे ख़रीदने पेमेंट करने गए हैं गाड़ी, तो उन्होंने बैक मार दिए। उनका मौक़िफ़ ये है
کہ جی 7-7 لاکھ रुपए कार की कीमत बढ़ गई है। इस तरह 2700 और 2800 सीसी की लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 19,20,000 से 31,60,000 का इजाफा किया गया। कंपनीज हुकाम के मुताबिक डॉलर की कीमतों में बेलगाम इजाफे से गाड़ियों की कीमतें बढ़ाना पड़ी, ताहम डीलर ने इसे कारोबार के लिए तबाहकुन करार दिया। यहाँ आया हूँ, गाड़ी पसंद भी आ गई, फाइनल हो गया रेट, तो आज पेमेंट लेके आया हूँ, वालदा वगैरह घर वाले सारे साथ आए हैं, तो आज पता लगा जी 10 लाख रुपया गाड़ियों का प्राइसेस बढ़ा दी है रात टोयोटा कंपनी ने। तो अब समझ नहीं आ रही जी हमारा मुल्क किस साइड पे जा रहा है। आम आदमी के लिए आप देखें ना जी, ग्रैंडी आज से 2 साल पहले आप देख लें 35-40 लाख रुपए की गाड़ी थी, इस टाइम वो कॉस्ट आपको रजिस्टर करके 70+ जा रही है। पार्ट्स की दरामद में मुश्किलात से टोयोटा ने बरवक्त डिलीवरी से भी माजरत कर ली है और ग्राहकों को मजीद 3 महीने सब्र करने या रकम वापस लेने की ऑप्शन दी गई है। कैमरामैन अली नुमान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। स्कूल 1 अगस्त से खुलेंगे। महकमा तालीम ने औकात-ए-कार जारी कर दिए। लड़कों के स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे, लड़कियों को सुबह 7:15 तक स्कूल पहुंचना होगा। छुट्टी दोपहर 1 बजे हुआ करेगी। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। स्कूल 1 अगस्त से खुलेंगे। महकमे तालीम ने औकात-ए-कार जारी कर दिए। पीटीआई का पंजाब की आवाम के लिए बड़ा टारगेट सब्सिडी प्रोग्राम। लाहौर समेत सूबा भर में टारगेट सब्सिडी के लिए 100 अरब रुपए का फंड आवाम को दिया जाएगा। पंजाब में सोशल प्रोटेक्शन का बजट एहसास राशन और एहसास माली इमदाद प्रोग्राम को मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें एहसास राशन और माली इमदाद के तौर पर प्रोग्राम का दोबारा से आगाज होगा। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत अशियाए खुरोनोश पर सब्सिडी मिलेगी। सोशल प्रोटेक्शन का फंड टारगेटेड सब्सिडी के तौर पर आवाम को दिया जाएगा। एहसास माली इमदाद प्रोग्राम के तहत कम आमदन वाले अफराद को कैश दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को प्रोग्राम की तकमील का टास्क सौंप दिया है। एहसास राशन प्रोग्राम पर मुंतखब करदा अशियाए खुरोनोश पर 30% की सब्सिडी कम आमदन वाले अफराद को दी जाएगी। महकमा CNW ने सड़कों की मुरम्मत के लिए 20 अरब रुपए मांग लिए। बजट से लाहौर समेत सूबा भर की गई सड़कें मुरम्मत करवाई जाएंगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए बजट के इजरा पर नई गाइडलाइन जारी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की हदायत पर नए माली साल में सिर्फ PTI के पहले से जारी मंसूबों को फंड का इजरा हो सकेगा। ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने PND बोर्ड और महकमा खजाना को बाकायदा हिदायत जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के नए मंसूबे का फंड भी PTI के मंसूबों को जारी होगा। ज़राए ने बताया कि तमाम नए मंसूबे का बजट सिर्फ PTI के जारी मंसूबों को मुंतकिल होगा, जिसमें PSDP, ADP और DDP में सिर्फ PTI के मंसूबे ही मुकम्मल होंगे। गुज़श्ता रोज महकमा खजाना पंजाब से जारी तरक्याती मंसूबों पर इजरा शुदा बजट वापस ले लिया गया था, जिसे अब नई हिदायत के बाद जारी किया जाएगा। दौरान सर्विस जाँ बहक होने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की फैमिलियों की सुनी गई। 5 साल से ज़ेरे इल्तवा लाहौर समेत पंजाब भर के 1000 केसेस में 331 फैमिलियों को 65 करोड़ 73 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए। रवा माली साल ज़ेरे इल्तवा केसेस के लिए 2 अरब 20 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं। दौरान सर्विस जाँ बहक होने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की फैमिलियों के फंड्स मिलना शुरू हो गए। 1000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा केसेस में से 331 मुलाजमीन की फैमिलियों को फंड जारी कर दिए गए। रवा माली साल में 2 अरब 20 करोड़ के फंड्स फैमिलियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। पहले क्वार्टर में 65 करोड़ 73 लाख रुपए के बकाया जात फौत होने वाले मुलाजमीन की फैमिलीज को दे दिए गए हैं। CCPO लाहौर के 45 मुलाजमीन को 8 करोड़ 90 लाख, स्पेशल ब्रांच पंजाब को 44 लाख, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब को 2 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए। दूसरे क्वार्टर में आने वाले फंड्स बुरसा को मरहलावार और तरतीब के मुताबिक जारी कर दिए जाएंगे। लाहौर बोर्ड ने महकमा हायर एजुकेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर बोर्ड ने रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा को फारिग न किया। तनख्वाहों की मद में लाहौर तालीमी बोर्ड को बहाना लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। लाहौर बोर्ड ने महकमा हायर एजुकेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। महकमा आला तालीम ने बोर्ड्स को रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा को फारिग करने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद रिटायर्ड मुलाजमीन अभी भी काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर रियाज सैयद, डिप्टी कंट्रोलर इम्तियाज अहमद और सेक्रेटरी ऑफिसर मफरूर कुरैशी समेत दीगर अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी ओहदों पर ताहाल तैनात हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने 1 माह कबल रिटायर्ड मुलाजमीन को फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती के लिए भर्ती किए गए रिटायर्ड मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार की जा रही है। फहरिस्त तैयार होते ही रिटायर्ड मुलाजमीन को ओहदों से फारिग कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के शाह खान ने पंजाब में प्रीमियर टेबल टेनिस लीग अपने नाम कर ली है।
जिम्नेजियम हॉल में होने वाले चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में शाह खान खेल पर छाए रहे और किसी लम्हे भी मोहम्मद उबैद को अपने ऊपर हावी न होने दिया। शाह खान ने स्टेट सेट्स में 11-7 और 11-9 से कामयाबी हासिल की।